नाउ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 8। दो थ्योरम्स हैं इसमें, वो वन बाय वन में आई विल डू। फर्स्ट थ्योरम है 8.8 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट्स हैं, इनको लाइन जो ज्वाइन करेगी वो BC के पैरेलल होगी। क्या दिया है? ए ट्राइंगल ABC एंड मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC are joined at E and F. We are to prove BC parallel EF. BC parallel EF. कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा सा करते हम। ड्रा ए लाइन पैरेलल फ्रॉम C which is parallel to AB. ये यहां से एक लाइन खींच देते हैं और EF which meet EF after extension at D। यहाँ ये D पर मिले, D पर मिले। Now in triangle AEF and FCD क्या क्या बराबर है? AB पैरेलल CD और ED इनको काटती है, तो एंगल ये और ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये और ये अपोजिट एंगल है, और AF FC के बराबर दिया हुआ है। F इज मिड पॉइंट। ये एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। by construction and AF is equal to FC. AF is equal to FC given. Therefore triangles are congruent. Triangles congruent होगी तो EF is equal to FD. Therefore EF is equal to FD. EF is equal to FD and AE is equal to CD and AE is equal to CD. अब ये EF है, कोई भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो बेस का हाफ होती है। EF क्या लिखें हम इसको? 1/2 BC और FD EF के बराबर है, तो हाफ ऑफ ED लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED, और BC इज इक्वल टू ED। BC इज इक्वल टू ED। AE इज इक्वल टू EB गिवन। AE इज इक्वल टू BE गिवन। अभी हमने प्रूव किया है BE इज इक्वल टू CD, बट BE इज इक्वल टू CD। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट CP/CT से। तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CE। इस 1 और 2 से BE इज इक्वल टू CD। BE इज इक्वल टू ये A इज इक्वल टू B दिया है,
A is equal to BE and B is equal to CD. No, A is equal to CD. AE is equal to CD. Therefore, BE is equal to CD. BE is equal to CD. And BE is parallel to CD. Therefore, BCDE is a parallelogram. Is a parallelogram. So, therefore, BC parallel EF. Now, theorem 8.8. It is converse of previous theorem. अभी इसमें क्या दिया है? Line drawn through the midpoint of one side of a triangle. इस मिड पॉइंट ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है, ई से ई एफ आगे इसके पैरेलल खींची गई है जो कि इस एफ में मिलती है. तो वी आर टू प्रूव ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा. ए एफ इज इक्वल टू एफ सी प्रूव करना है. ड्रा सी एक्स, ये सी एक्स एक पैरेलल ए बी विच मीट एक्सटेंडेड ई एफ एट डी. EF at D. Now EFD proof BC parallel EF और EFD ये पैरेलल इसके दिया है एंड AB पैरेलल CX कंस्ट्रक्शन से. Therefore EBCD is a parallelogram in which BE is equal to CD. Therefore BE is equal to CD, opposite sides of parallelogram. But BE is equal to AE, मिड पॉइंट है E, गिवन है ये. Therefore CD is equal to AE. Now in triangle AEF and FCD क्या क्या बराबर है? ये एंगल बराबर है इसके 1 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल. अब ये ए बी पैरेलल सी डी या सी एक्स एंड ए सी intersect them. Therefore this angle is equal to this angle. Angle 3 is equal to angle 4. AB या ऐसे लिखो, angle 3 is equal to angle 4, alternate angle because AB parallel CX कंस्ट्रक्शन से. एंड AE is equal to CD अभी प्रूव किया है. AE is equal to CD. AE is equal to CD. Therefore triangles are congruent by angle side property of congruency. Triangle congruent है. Therefore AF is equal to FC CP से.
Dear students, today we will do exercise 8.2. Question number 1 is ABCD is a quadrilateral. ABCD quadrilateral है. PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं साइड AB BC CD DE जो फिगर में दिया है. AC is diagonal. AC is diagonal. You are to prove SR parallel AC and SR is equal to half of AC. AC का इसका PQ is equal to SR and PQRS is parallelogram. Now solution इसका है in triangle ABC. ABC में PQ are midpoints and AC is base. P and Q are midpoints. Therefore, PQ is parallel AC and PQ is 1/2 AC by midpoint form. जो अभी हमने की है उसके. नाउ इन ट्राइंगल, अभी दूसरी ट्राइंगल लो ACD. इन ट्राइंगल ACD SR are midpoints. SR are midpoints. SR are midpoints. Therefore, SR is parallel to AC and SR is half of AC. SR is half of AC. Now ये है AC के पैरेलल है SR और PQ. So SR is parallel to PQ. ये है 1 2 from 1 and 2 SR parallel AC and PQ parallel AC. PQ parallel AC and half इनके इक्वल है. Therefore SR parallel PQ and from 1 and 2 SR equal to PQ. In parallelogram, two sides are equal and parallel. Therefore PQRS is a parallelogram. ये प्रूव करना था हमें. PQ is equal to SR, PQ is equal to SR and SR parallel AC. So it is proved. Now in question number 2, ABCD is a rhombus. एक rhombus दिया है, उसके ये मिड पॉइंट्स हैं SPQR ABCD DA के. So that PQRS is a rectangle. PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है. यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का सेम पार्ट आएगा उसका यूं का यूं. अभी हमें प्रूव करना है SP या PQRS. यही PQRS is rectangle. ये प्रूव करना है हमें. नाउ बाय
मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, therefore PQ parallel AC, MQ parallel ON, MQ parallel ON, and similarly ON parallel NQ, ON parallel NQ. Therefore MQNO या OMQN is a parallelogram. अब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक इस पर परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ये एंगल ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल है 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दी OMQN, क्योंकि आमने सामने के कोण एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। Therefore angle 2 is equal to 90 degree. In angle 2 is 90 degree. In parallelogram PQRS, one angle is 90 degree. Therefore PQRS is rectangle. PQRS is rectangle. Now in question number 3 वही सेम ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS के मिड पॉइंट्स हैं। Show that the quadrilateral PQRS, यही PQRS is rhombus. Rhombus क्या है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। पहला पार्ट यही प्रूव करना है आपको। PQRS is a parallelogram. PQRS is parallelogram. Therefore PQ is equal to SR. PQ is equal to SR and PQ is equal to SR, PS is equal to QR. PS is equal to QR. ये ऐसी थ्योरम पहले भी आप कर चुके हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये साइड SP is equal to PQ, ये साइड। नाउ इन ट्राइंगल SAP या SAP एंड QPB क्या क्या बराबर है इसमें? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो SP विल बी इक्वल टू PQ। ये देखो एंगल, ये एंगल A, एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ABCD के ये एंगल हैं A और B। Therefore this angle, these are equal. SA is equal to QB and AP is equal to PB. AP is equal to PB, मिड पॉइंट P मिड पॉइंट है
और एस ए इज इक्वल टू क्यू बी, सामने की साइड्स बराबर हैं, तो ये मिड पॉइंट है, इसका हाफ भी बराबर होंगे। ए पी इज इक्वल टू पी बी, पी इज मिड पॉइंट, नाउ ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी सी, half of AD is equal to half of BC। ये क्या है? AS is equal to QB, AS QB, AS is equal to QB। Triangles are congruent by side angle side, rule of congruency, therefore SP is equal to PQ, SP is equal to PQ, SP is equal to PQ, therefore by 1 AB SP is equal to PQ is equal to QR is equal to RS। यही हमें प्रूव करना था। फोर साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रोम्बस। इन क्वेश्चन 4, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में दो साइड्स या ये या ये या ये, पेयर ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, BD इज डायगोनल एंड E is midpoint of AD। A line is drawn through E, E से एक लाइन ड्रा की है जो कि पैरेलल है इससे, ये AB इंटरसेक्ट BC एट है, BC को F पर यहां पर इंटरसेक्ट करती है ये, सो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। देखिए सॉल्यूशन है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD में E is midpoint of AD and AB parallel EF। ये दिया हुआ है, E is midpoint of AD and line is drawn through E parallel to AB। ये EF या EG parallel EG, therefore by midpoint theorem ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये इसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट थ्योरम, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB, इस DP का G मिड पॉइंट है। नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दूसरी लो, DCB, DCB, G इज मिड पॉइंट ऑफ, प्रूव किया हमने, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB एंड ये EF पैरेलल DC है, तो या GF पैरेलल CD एंड GF पैरेलल CD, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो, GF पैरेलल CD, therefore by
मिड पॉइंट थ्योरम, F is the midpoint of BC। यही एक लाइन का क्वेश्चन था, यही हमें प्रूव करना था। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये भी 3 लाइन का है, ये भी 3 लाइन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 फिगर दी हुई है ऐसे आपकी बुक में। पैरेललोग्राम है ABCD, E and F are midpoints of side AB and CD, so that ये दिया हुआ उसने, the line segment AF and EC, AF and EC trisect diagonal BD। ये डायगोनल BD है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये दो लाइन AF एंड EC। इट मीन्स क्या प्रूव करना क्या है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट 2 भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। नाउ सॉल्यूशन देखो इसका, AB इन पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, so AB is equal to CD, therefore AB is equal to CD, और half of AB is equal to half of CD। half of AB क्या है, AE is equal to FC, A is equal to FC, AB parallel CD, so FC parallel AE, therefore AE parallel FC। AB parallel CD है तो इसके हाफ भी AE parallel CF, therefore इस फिगर की ये साइड और ये साइड पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है, तो AECF, therefore AECF is a parallelogram, now in triangle, ये ट्राइंगल लो DQC, in triangle DQC PF parallel QC, PF parallel QC, PF parallel QC, sides of parallelogram AECF, and F is midpoint of DC, midpoint of DC, therefore by midpoint theorem से DP is equal to PQ, DP is equal to PQ, इसको एक ले लेते हैं। नाउ ये और ये पार्ट इक्वल हो गई, अब ये इस और इस पार्ट के लिए हमें ये APB ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल APB, APB में क्या बराबर है, AP पैरेलल EQ, AP पैरेलल EQ,
यही साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ए ई सी एफ, ये ए ई सी एफ, इस पैरेललोग्राम की साइड से तो पैरेलल है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ये दिया हुआ है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ए बी, therefore Q is also midpoint of, Q is also midpoint of PB. Therefore PQ is equal to QB. PQ is equal to QB. So therefore by 1 and 2, dP is equal to PQ is equal to Q. यही हमें प्रूव करना। Now in question number 6, एक ट्राइंगल दी है, राइट ट्राइंगल, क्योंकि सी पर राइट एंगल है। इसका ए लाइन थ्रू दी मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मिड पॉइंट है ए बी का, एंड पैरेलल टू बी सी, और इससे ये पैरेलल है लाइन, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो शो करना है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का डी मिड पॉइंट है, एम डी परपेंडिकुलर ए सी, एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, सी एम एम ए इज इक्वल टू हाफ, ये सी एम और एम ए इस लाइन का हाफ है। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, डी एम पैरेलल सी बी एंड एम इज मिड पॉइंट of AB, therefore by midpoint theorem D is also midpoint of AC. ठीक है, ये प्रूव। नाउ इन सेकंड एंगल ये MD, now MD is parallel to CB, so angle C will be angle equal to angle 1, angle C is equal to angle 1, ये corresponding angle, angle C is equal to 90 degree, therefore angle 1 is equal to 90 degree, but angle 1 is equal to angle 2, ये angle 2 ले लो, by linear pair, AC पर MD 3 हुई है, so angle 1 plus angle 2 is equal to 180, angle 1 is equal to 90 degree, so angle 2 will be also angle 2 is equal to 90 degree by linear pair। एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, लीनियर पेयर इज सफिशिएंट। नाउ देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर AC, MD इज परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC। अब थर्ड पार्ट के लिए एक टू ट्राइंगल्स ADM, नाउ इन ट्राइंगल ADM and DMC, angle 1 is equal to angle 2, each
90 डिग्री, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC प्रूव्ड, D इज मिड पॉइंट है, DM इज इक्वल टू DM कॉमन है, therefore triangles are congruent by side angle side, rule of congruence. Therefore CN is equal to AM, is equal to A, CPC. Now AM is equal to half AB, AM is equal to half of AB, M is midpoint, M is midpoint. Therefore ये CM is equal to M है, तो CM is equal to AM is equal to half of AM. ये थर्ड आपका प्रूफ था. Now chapter 8 is over. I have done all exercises and theorems of this chapter. Thank you. अभी इसमें क्वेश्चन 3 है 8.2 का. मैंने कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम यूज की थी, आप किसी दूसरे मेथड से, अल्टरनेट मेथड से इसको प्रूव करो. ये आपका होमवर्क है और इस पर कमेंट करें. कोई और सजेशन है तो कमेंट में हमें भेजें. थैंक यू.